Okay, guys. So on Tuesday, we talked about the what like हमने किसकी बात की थी about future helping verb ना, and like we talked about modals also like will, shall, can, could, and should. We have talked about these things if you remember that. Guys, we have completed these one now. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now onward, we are just going with the like modal verbs which are left here ना, जो अभी तक रहती है उनके बारे में हम बात करेंगे. These are कौन सी हैं? These are like first one is like must, okay, and afterwards we'll talk about like would, and then we'll talk about might. Today's class would be on these things like must, would, and might. That where and how we use them, okay? कहाँ and कैसे हम इनका use करते हैं, and Sir, what kind of. excuse me, sir. Sir, ये भी modal verb में आता है? Yes, please. Okay, sir. Okay, so we are going to learn these things today. Okay, कौन सी है? The very first one is must, the second one is would, and afterwards at the end we'll talk about the might also. Okay, about these things we are going to talk about. So firstly we'll talk about हम लोग must से start करते हैं. I do have a question for you people ना, मेरे पास कुछ questions हैं आप लोगों के लिए. I just want to confirm कि इसमें कोई difference है या नहीं. So the very first thing is like अगर मैं कहता हूँ कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, एंड द सेकंड वन इज कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Yes, sir. क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इसमें कंपलसरी है कि जाना ही चाहिए मॉर्निंग उठ के. नहीं, एक एडवाइस है और एक कंपलसरी है. तो है तो दोनों ही एडवाइस, बट द थिंग इज दैट कि क्या हो रहा है, एक में हम थोड़ा स्ट्रेस डाल के कह रहे हैं Yes, कि हमें ये काम जरूर करना चाहिए. Might be possible है ना, like suppose like if you are fit, अगर आप fit हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, and if you are like me, अगर आप मेरी तरह like है ना कि अच्छे से fit नहीं है, then I would say कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए. Then this would be ना, this would be the difference. करना चाहिए और जरूर करना चाहिए. Okay, so for example कुछ और अगर example दें हम लोग, same as it is. Okay, like if you are having like अगर आपका कोई brother है उसको आप advise करते हो, और एक सेम एज इट इज किसी पड़ोसी को आप एडवाइस करोगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा ना. Yes, ब्रदर sir. को तो हम कह सकते हैं कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एंड फॉर द नेबर्स विल से कि आपको पढ़ना चाहिए. Yes, sir. these are the difference ना. So must जो है, we use this one. Okay, come to the chat box please. Must we use, I'm going to write this one, we use this one to advise. Okay, we use this one for advice. Like earlier we talked about, हमने should की बात की थी, should का use भी हम advice के लिए करते हैं, and must is also for advice. But the difference is like should का use कब करते हैं, when like we are saying just simply किसी को advice कर रहे हैं, and we are like very much sure कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए. जब किसी work पे आप stress दे के बोल रहे हो, on that time we'll use what, हम लोग must का use करेंगे. Okay, the structure would be, sentences बनाने का structure क्या रहेगा? Firstly we'll take a subject. Okay, then we use must, and afterwards we are going to use the verb, or with the verb you need to use the very first form, subject plus must plus v1. It means verb की first form आप लोगों ने use करनी. Okay, so क्या रहेगा देखो, with each and every subject like I, okay, and you and they, okay, like we and he, then like she, any name, okay, any relation. With each and everyone the structure would be same. सभी सब्जेक्ट के साथ जो स्ट्रक्चर है आपका सेंटेंस बनाने का, that would be same, वो सेम रहने वाला. You just need to take a subject, afterwards you are going to use must, and then you need to use the verb. Okay, this would be your structure. Guys, getting the thing? समझ आ रही है बात आप लोगों को? Yes, sir. Okay, thank you. Right now, for example, like if I make a sentence about you is a subject. Okay, हम लोग must करके कुछ advice करते हैं, like you must speak English. You must speak English. It means like आपको English जरूर बोलनी चाहिए. जब हम लोग किसी वर्क पे स्ट्रेस देके हम कह रहे हैं कि ये आपको काम जरूर करना चाहिए. So you must speak English. You must speak English. Okay. Before joining the classes might be possible किसी ने आपको कहा होगा कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए, so फिर वो शुड हो जाएगा.
As you have joined classes right now, अभी आपने classes join कर दी and you have started learning. तो अभी आपके लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है. तो इट मीन्स यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. क्या रहेगा? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट वन वुड बी अबाउट दे. लाइक दे मस्ट go for morning walk. Go for morning walk. They must go for morning walk. It means like उन्हें morning walk पे जरूर जाना चाहिए. They must go for morning walk. They must go for morning walk. Guys, getting the thing? समझ आ रही है बातें? Easy है sentences? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's really nice. Next one would be about like we, हमारे regarding रहेगा हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे लिए. We must make sentences. Okay, like sentences हमें जरूर बनाने चाहिए. We must make sentences. We must make sentences. Okay, और sentences बनाने चाहिए फिर क्या रहेगा? We should make sentences. और जरूर बनाने चाहिए then we must make sentences. This is the difference between these two. Okay, next one would be like regarding he. Breakfast करना चाहिए या जरूर करना चाहिए, क्या लगता है? Breakfast करना जरूरी है? Yes, sir. Yes, sir. So the sentence would be he must We must. take breakfast. Okay, the sentence is like he must take breakfast. He must take breakfast. It means like उसे breakfast जरूर करना चाहिए. He must take breakfast. He must take breakfast. अगर she की बात करें simply, देखो structure same है. We just need to change word. हमें जिसके subject, it means about whom we are talking. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, just उसको हमने change करना है. Otherwise the method would be same. The structure would be same to make sentences. Okay, sentence बनाने का जो structure है वो बिल्कुल same रहेगा, but simply आपने क्या करना है, हर बार आपने एक subject change करना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. और the verb you need to use the very first form. Verb के साथ आप लोगों ने first form use करनी है. Okay, continue करते हैं. You must do job. Okay, good Rahul. The next one would be Sir, like, not Rahul, me, Nidhi. मैंने लॉगिन किया राहुल पांडे से. अच्छा निधि, आप राहुल पांडे से आपने लॉगिन किया? Yes, sir. Okay, noted. अभी राहुल मीन्स निधि. शक्तिमान गंगाधर वाली बात है, एक ही है दोनों ना, राहुल ही निधि है, निधि राहुल. चलो कंटिन्यू करते हैं. लाइक राहुल से कंटिन्यू करते हैं. राहुल मस्ट गेट अप अर्ली. ओके, आप लाइक राहुल को जरूर जल्दी उठना चाहिए. राहुल मस्ट गेट अप अर्ली. राहुल मस्ट गेट अप अर्ली. सिंपल. ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं. अबाउट द रिलेशन, इफ वी टॉक अबाउट लाइक, ओके चलो, माय फादर मस्ट, लाइक क्या लगता है, भाई को डांटना चाहिए या नहीं? डांटना चाहिए. डांटना चाहिए. ओके, माय फादर मस्ट स्कोल्ड. किसको? माय ब्रदर. माय फादर मस्ट स्कोल्ड टू माय ब्रदर. इट मीन्स लाइक मेरे पापा को, मेरे भाई को जरूर डांटना चाहिए. सो माय फादर, ओके, माय फादर मस्ट स्कोल्ड टू किसको? माय ब्रदर. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस विद must. इस तरह से हम लोग must का यूज करते हैं. Right now guys, if you do have any kind of doubts regarding must, तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज. अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है must के रिगार्डिंग, किसी का कोई डाउट है? सर अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो मस्ट के थ्रू तो कैसे बनेगा? यू मस्ट नॉट डू जॉब या यू मस्ट ऐसे. सिंपली उसमें नॉट लग जाएगा. ओके. हाँ, एक बार आप नेगेटिव फॉर्म में नहीं चाह रहे वैसे, बट बनाने हो तो इस तरह से बन जाएंगे, मस्ट नॉट हो जाएगा. यस प्लीज. ओके गाइस, इफ आई से, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ना मुझे डेली क्लास पढ़ानी चाहिए, तो क्या बनेगा? मुझे डेली क्लास पढ़ानी चाहिए, जरूर पढ़ानी चाहिए सिंपली, तो क्या रहेगा? यू मस्ट टीच डेली क्लासेस. ओके, मुझे मतलब यू होगा या आई होगा? आई होगा, बट मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ तो मैंने यू यूज किया है. अच्छा ठीक है, मुझे एडवाइस कर रहे हैं. एनीबडी एल्स कोई और सेंटेंस बोल के बताना चाहेगा आप में से? मस्ट से एडवाइस करना चाहोगे आप लोग? इफ यू आर विलिंग देन यू कैन. I must take daily classes. That's really nice, man. That's really nice. You must teach us English. You must teach us English. Okay, जी, got it. Good one, good one.
I must watch IPL. मुझे तो IPL देखना चाहिए वैसे जरूरी. Okay, so work hard guys, for your project. you must work hard for your project. Okay, जी, nice one, good one. Anybody else want to speak? देखो लिखने वाला जो काम है by the end of the class हम लोग रखेंगे, but right now you can do practice while like speaking. Am I must? Okay, yes, Sandeep. Finally, कल वो लोग मैच जीत गए वैसे. They won the match yesterday. Okay, चलो कंटिन्यू करते हैं प्लीज आगे guys. We are going to talk about. किसी का कोई डाउट नहीं है ना मस्ट में? If you No, do have, sir. you can ask please. No, sir. You know, so intelligent you guys are. Not intelligent. Okay. The next one would be like would. Yes, please. Would. Anybody want to explain about this one, like when and how we use would? सर पोलाइटली ऑफर के लिए वुड यूज होता है एक तो. Okay, जी, got it. What else, please? और क्या हो सकता है इसमें? सर जैसे कोई मैं करूंगा ऐसे. मैं करूंगा. Okay, जी, got it. Then do one thing, please. I'm going to write something. Okay, just come and see that, please. Okay, let's see. पोलाइटली ऑफर के लिए होता है, एक इमेजिनरी थिंग्स के लिए होता है जो हम इमेज करते हैं कि काश ये मेरे पास होता तो मैं ये करती, ऐसे कुछ होता है. ऐसा ऐसा कुछ होता है. यार सर. Okay, got it, got it. Yes, please. पसंद के लिए भी कोई चीज पसंद हो तो उसके लिए. पसंद हो उसके लिए भी यूज कर लेते हैं. Got it, please. चलो, okay. Uses देखते हैं. You guys told about the uses and these were correct, please, and thank you for sharing. But like हम लोग थोड़ा इस पे करते हैं कुछ और ना. Just come to the chat box over here. I'm going to use this one. Like it is used. It is used in a sentence to talk about imagination. Imagination का मतलब समझते हैं? या सर. Yes. Okay, to talk about imagination or desire. Desire का मतलब समझते हैं? इच्छा. Yeah, desire means इच्छा ना. Okay, desire that would happen in practical life. Okay, guys, I have written this one that it is used in a sentence to talk about imagination or desire that would happen in practical life. Okay, we use this one in a sentence to talk about. एक तो imagination की बात करने के लिए यूज करते हैं, एक हमारी desire इच्छा के बारे में हम लोग बात करने के लिए इसको यूज करते हैं, जो कि क्या होगा कि वो practical life में that would happen in practical life कि वो कभी होगी ना. चलो, let's see. The another thing is about like सर आवाज ब्रेक हो रही है. right now अभी भी ब्रेक हो रही है. हाँ सर, फिर से लास्ट वाला रिपीट करिए प्लीज. Is it? I'm asking कि right now अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर. नो नो नो. No, everything fine. Okay, got it. I'm saying Sir, this. please ये बोर्ड दोबारा समझा दीजिए. हाँ जी, श्योर प्लीज. अभी बहुत है इसमें, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ आएगा ये ना. आई वुड एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. जब आप किसी वर्क, एक एक्शन या क्रिया को लेके व्हेन यू आर 101% श्योर कि आप ये करने ही करने वाले हैं. सिंपली इफ आई से दैट, मैं कहता हूँ कि मैं आज शाम को घर जाऊंगा ही जाऊंगा, इट मीन्स कि मैं घर जाऊंगा आज शाम को, पक्का है, 101% श्योर है कि मैं आज शाम को घर जाऊंगा. If I say that कि like आज मैं 6 o'clock क्लास पढ़ाऊंगा, like ये 101% श्योर है कि मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा. जब किसी वर्क एक्शन को लेके यू आर 101% श्योर कि ये काम होगा ही होगा, फॉर दैट वन वी विल यूज वर्ब. ओके, इसके लिए कैसे यूज करते हैं? देखो, सब्जेक्ट आपने यूज करना है एक, you need to use the subject. Afterwards, like you are going to use the modal verb like would, and then you need a verb, or with the verb you will use the very first form. Subject plus would plus V1. Okay, अब कैसे रहेगा? देखो, if I say that like मैं 6 बजे पक्का क्लास लगाऊंगा तो क्या बनेगा?
अब इसमें मैं मीन्स क्या, मैं एक क्या है, सब्जेक्ट है. ओके, सो I would एक attend क्लास the class. I would attend the class at 6. It means कि 6 o'clock में पक्का क्लास लगाऊंगा. I would attend the class at 6. I would attend the class at 6. In this one you can change the subject, आप change कर सकते हैं. Like my father would come home today. It means like आज मेरे पापा पक्का घर आएंगे. My father would come home today. My father would come home today. If I talk about my mother, so my mother would make dinner for me today. Like my mother would make dinner for me today. It means like पक्का मेरे मम्मा आज मेरे लिए खाना बनाएंगे. So when you are 101% sure for anything, we will use word like would का use करते हैं हम लोग. बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग श्योर होते हैं ना पहले से कि ये काम तो करेंगे ही करेंगे पक्का. If I say that on upcoming Sunday, I would go for shopping, I would go for watching movie. Okay, simply जो भी आप काम करने वाले हैं. When you are 101% sure about anything, we will use would. हम लोग would का use करेंगे. Got it, guys? समझ आई बात ये? यस सर. Okay, the next use of would be क्या रहेगा? देखो, just come to the chat box, please. Okay, it is used in a sentence to talk about past habit. अच्छा ठीक है, अभी इसमें past habit का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? I have written something. इसमें क्या लिखा है? It is used in a sentence to talk about past habit. एक सेंटेंस में इसका यूज होता है कि पास्ट हैबिट्स के बारे में भी बात करने के लिए यूज करते हैं इसका. पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? पास्ट हैबिट का मतलब समझते हैं आप लोग? यस कि सर. जो काम मैं किया करता था अब नहीं करता. जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाया करता था. ओके, लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था. ओके, लाइक इफ आई से दैट मेरे पापा पहले जॉब किया करते थे. ओके, और फिर और क्या हो सकता है कि मेरा भाई अपने नानी के घर जाया करता था. कि जो काम हम लोग पास्ट में करते थे अभी नहीं करते. फॉर दिस वन, फॉर पास्ट हैबिट हम लोग वुड का यूज कर लेते हैं. पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज करते हैं? वुड का यूज कर लेते हैं. गेटिंग द थिंग गाइस? बात समझ आई? पास्ट हैबिट का मतलब समझ गए आप लोग? यस सर. सर उसके लिए यूज टू नहीं यूज होता? हाँ, यूज टू इज अ ऑप्शन. यूज टू और वुड दोनों, लाइक आइदर यू कैन यूज टू और यू कैन यूज लाइक वर्ड. आप वुड का भी यूज कर सकते हैं. आप like I used to go for morning walk and I would go for morning walk. Both the sentences are having same meaning. दोनों का एक ही मतलब. सर पास्ट हैबिट का मीनिंग फिर से समझाओ ना प्लीज. हाँ, मैं बताता हूँ. पास्ट हैबिट का मतलब कि जो काम हम किया करते थे अब नहीं करते. जैसे पहले लाइक अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते थे, अभी जाते हो क्या? नो सर. नहीं जाते ना अभी, राइट नाउ. उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि मैं पहले इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, अब मैं नहीं खेलता. ओके, और फिर और क्या हो सकता है कि मेरे मम्मा पहले मेरा टिफिन पैक किया करते थे, अभी नहीं करते. इट मीन्स क्या होता है कि जो काम पहले किया करते थे अब नहीं करते. गेम्स बहुत सारी हम लोग खेलते थे पहले. माइट बी पॉसिबल आप लोगों ने भी खेली होगी. पास टाइम में वो हम खेलते थे, अब नहीं खेलते. टीवी सीरियल्स बहुत हम देखा करते थे पहले. इज देयर एनीबॉडी? किसी ने शक्तिमान देखा है क्या? Yes, sir. यस सर. Okay. तो simply okay, got it. If I talk about that one, अगर मैं कहता हूँ कि मैं शक्तिमान देखा करता था, अब नहीं देखता. Simply वो क्या, वो मेरी पास्ट हैबिट थी. बहुत सारे सीरियल आते थे उस टाइम, है ना? Like might be possible कि आप लोगों ने देखे होंगे. हॉरर बहुत आते थे रात को, है ना? कि like there was a serial की, है ना, कि आप बीती एक था, and there was serial की इश्क कोई है, something ऐसा कुछ था. सो वो क्या था, वो पास्ट टाइम में देखा करते थे, अब नहीं देखते. सिंपली वो पास्ट हैबिट थी. तो फॉर दैट वन हम लोग वुड का यूज करते हैं. अब कैसे यूज करते हैं? सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू मेक, हम लोग बना सकते हैं. आप लाइक आई वुड गो टू स्कूल. ओवरऑल देखो, ये आपको क्लियर किस चीज से होगा कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं. देखो वैसे तो जो फर्स्ट वाली सेंटेंस भी हम लोग ऐसे ही बना रहे थे कि आई वुड गो टू स्कूल, कि मैं पक्का स्कूल जाऊंगा. बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वुड बी क्लियर
once you are having a some kind of conversation, जब आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे तो उसमें एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो would यूज हुआ है ये यूज टू वाला है, मतलब पास्ट हैबिट वाला है, या फिर फ्यूचर में जो श्योरिटी वाला है वो वाला है। वो आपको कंफर्म होगा किससे, कन्वर्सेशन से। जैसे कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग कहते हैं कि यार पहले बड़े मजे होते थे यार, क्या स्कूल में बंक किया करते थे। अब देखो ये प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की है या पास्ट की है? पास्ट की है। पास्ट की है ना, तो अब इसमें क्या लगेगा, वी वुड बंक द क्लासेस ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। तो अब ये वुड जो है ये पास्ट का हो गया है ना। मैं कहता हूँ यार, मैं दोस्त के साथ प्लान बना रहा हूँ कि यार हम लोग टूर पे जाएंगे, तो है ना कि यार पक्का है, देख लेना, श्योर है कि हम लोग जाएंगे और बड़ा एंजॉय करेंगे वहां पे। सिंपली वी वुड गो ऑन टूर। अब ये क्या है, ये बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग Future. अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन ना। तो दिस इज हाउ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वुड आप पास्ट वाला यूज कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर वाला यूज कर रहे हैं। गॉट इट गाइस? सर वर्ब की फॉर्म इसमें भी फर्स्ट रहेगी? फर्स्ट फॉर्म मैम, फर्स्ट फॉर्म। तंग करते ही नहीं आपको इसमें, वेरी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है इसमें। ओके चलो, may I talk about the next uses of this one, बात करें? यस सर। Okay, the next use of this one is like to make polite request. नो सर, इस पास्ट का थोड़ा एक दो और एग्जांपल चाहिए। Past के example और दे देते हैं, like my father would go to stadium. My father would go to stadium. It means like मेरे पापा स्टेडियम जाया करते थे, मेरे पापा स्टेडियम जाया करते थे। सिंपली ये काम पास्ट में हुआ करता था। और लाइक मदर की बात करें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे जो मम्मा है वो मेरे नानी के घर जाया करते थे, तो माई मदर वुड गो टू माई मैटरनल होम, है ना, कि ये काम हुआ करता था पहले पास्ट, उसके लिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। गॉट इट मैम? यस सर। ओके डन, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। To make polite request, I have written this thing. Like to make polite request, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम would का यूज करते हैं। Like simply I can ask a question that would you like to have coffee? Would you like to have coffee? Like क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? Would you like to have coffee? So in this one, would यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, simply as a polite request हम लोग यूज कर रहे हैं कि क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे। इस सिचुएशन में वुड का यूज हम लोग कैसे करते हैं कि स्टार्टिंग में आप वुड लेके आएंगे, आफ्टरवर्ड्स आप एक सब्जेक्ट लेके आते हैं, और देन जो भी आप उसकी इच्छा के बारे में कंफर्म कर रहे हैं। लाइक वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखना पसंद करेंगे? ओके, वुड यू लाइक टू गो ऑन टूर, क्या आप टूर पे जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे? तो सिंपली ओके, वुड यू लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट, ओके, और वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे प्लीज, और सिंपली है ना। तो ये वुड यू लाइक टू हेल्प मी हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। अभी ये क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। दिस इज हाउ वी यूज दिस वन, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं वुड का। गाइस इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क प्लीज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ क्वेश्चन? जाएगा उसमें, हाँ जी हाँ जी। ओके। Would you like to speak with me, Baljinder? Yes, please. I would like to speak with you. Okay, this one is the right sentence. ये सही है वैसे आपका sentence। सर किसी से परमिशन मांगने के लिए भी वुड बोलते हैं ना? हाँ, we can have, वो polite request होगी ना किसी से। Would you allow me to go there? क्या आप मुझे allow करेंगे, परमिशन देंगे वहां जाने की? तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। ओके सर। Would you like come with me? Okay, चलो got it. Would you like to come with me? सर इतनी चीजें आप याद कैसे रखते हो? हो जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं ना इस चीज के। ये सारे एक ही में मिक्स हो जाते हैं जैसे लगता You can do one thing please, आप है ना, इसीलिए आप लिखें इन चीजों को,
इधर फिर भी अगर गड़बड़ हो रही है तो रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, आप वो दोबारा से देख लेना। धीरे धीरे जब आप रूटीन में यूज नहीं। करेंगे ना तो सब चीजें याद हो जाएंगी, नो इश्यूज। नहीं सर, इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना, अब बिल कहाँ लगाऊं, वुड कहाँ लगाऊं, शुड कहाँ लगाऊं, मस्ट कहाँ लगाऊं। इसीलिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि रूटीन लाइफ में यूज करना स्टार्ट करो, है ना, कि जितना रूटीन लाइफ में यूज करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। स्टार्टिंग सारा में मिक्स हो जाता है सर। मिक्स नहीं होता मैम, जब प्रैक्टिस करते हैं ना फिर कोई इशू नहीं होता। अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि सारे मतलब इतना कंफ्यूज हो रहा है ना, मत ही आप पूछो सर। नहीं, अभी हम जैसे 1 बाय 1 कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर मतलब कि आपका समझाने का तरीका तो टू गुड है, मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है, समझ तो आ रहा है, लेकिन आज जो वुड और मस्ट वाला है ना उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत तो आ रहा है। देखो मस्ट जो है वो तो एडवाइस के लिए यूज करते हैं, वुड में कोई एडवाइस तो किसी को सलाह तो आप देते ही नहीं है ना। मस्ट में मैं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश, है ना, कि आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। तो अभी क्या बन गया, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ये तो सिचुएशन ही अलग है। फिर मैं कहता हूँ कि मैं पक्का इंग्लिश बोलूंगा, आई वुड स्पीक इंग्लिश, तो इसमें एडवाइस तो कोई है ही नहीं, सलाह तो इसमें कुछ है ही नहीं। सर शुड शुड हाँ जी, सर शुड 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 भी एडवाइस के लिए है। शुड में सिंपली एडवाइस करते हैं हम लोग कि आपको काम, आप सिंपली, मैं कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, और जरूर बोलनी चाहिए तो आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स आप बनाएंगे जितने ज्यादा उतना ज्यादा क्लियर होता रहेगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्या था गाइस हमारे पास लास्ट वन? माइट। Yes, please. We are going to talk about the might. अच्छा, okay. Here I'm going to give you the definition of this one. Definition क्या रहेगी जिससे थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को कब यूज करते हैं इसको हम लोग। So the definition, हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है माइट, और या सर जैसे 10 to 20% पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, तो हम माइट यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 10 to नहीं 50-50 रहती है। It is used in a sentence to talk about situations that are, आपके लिए इजी रखते हैं अपनी लैंग्वेज में, that are 50-50. Okay, it is used in a sentence to talk about situation that are 50-50. अच्छा, एक अच्छी सी डेफिनेशन और देता हूं मैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इट्स सिंपली means at that particular moment you are unable to decide what to do or what not to do. Acha, okay, I have written this one. It is simply means that a particular moment you are unable to decide what to do or what not to do. कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वी आर नॉट दैट मच श्योर कि लाइक करूं या ना करूं सिंपली। उस टाइम हम लोग क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार मैं शायद ये काम करूं। तो अब ये शायद में आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है वर्क को लेके। मैं कहता हूँ कि एज आई हैव एग्जाम, जैसे कि मान लो ऑन 15 को मेरा एग्जाम है, ऑन द सेम डे मेरे दोस्त की शादी है, आई वुड से कि यार मैं शायद आऊंगा, क्योंकि एज आई हैव एग्जाम तो मैं शायद आऊंगा। अब ये शायद आऊंगा, इट मीन्स क्या है, भी आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता, मतलब 50-50% पॉसिबिलिटी है वर्क। व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी like 50-50% ऑफ एनी वर्क, जो आपको लगता है कि चांसेस शायद ये काम होगा, शायद वर्ड समझते हैं ना आप लोग? Yes, शायद मींस कि लाइक मैं शायद मूवी देखने जाऊंगा,
शायद मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, शायद मैं कल क्लास अटेंड करूंगा। श्योर, जिस चीज की श्योरिटी नहीं होती है। श्योरिटी नहीं होती है, सिंपल। सर हाँ सर जी प्लीज। माइट बी एंड मे बी में क्या डिफरेंस होगा? माइट बी और मे बी में देखो, जो रहता है ना कि अभी सिंपली अब मे में लाइक जो पॉसिबिलिटी होती है वो और कम हो जाती है। वैसे बी से तो पंगा मत लो एक बार, बी तो बड़ा खतरनाक वर्ड है। मे और माइट का हो सकता है कि मे में पॉसिबिलिटी लाइक क्या होती है कि सिंपली मे और माइट का दोनों का ही शायद वर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब वर्क की पॉसिबिलिटी आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते कि काम करूंगा या नहीं करूंगा, जब आप शायद वर्ड को लेके चलते हैं तो हम लोग मे और माइट का यूज करते हैं। बट सर कोई भी सेंटेंस में दोनों यूज हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि ठीक ठाक सी पॉसिबिलिटी है तो फिर मे यूज कर लो, आपको लगता है भी शायद ही होगा ये काम तो फिर आप माइट का यूज कर सकते हैं। ओके सर। यस प्लीज। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइट अगेन। हम लोग कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फर्स्टली वी नीड अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए व्हाट, वी नीड माइट, एंड देन वी नीड व्हाट, वी नीड वर्ब, वर्ब हमें चाहिए। और विद द वर्ब यू आर गोइंग टू यूज द वेरी फर्स्ट फॉर्म। मैं कहता हूँ कि मैं ना शायद इवनिंग वॉक पे जाऊंगा, 50-50 है वैसे तो, मैं श्योर हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा पर फिर भी चलो मैं शायद ही मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाऊंगा। सो आई माइट, आई सब्जेक्ट है, माइट एक मोडाल वर्ब है जो हम यूज कर रहे हैं। आई माइट गो फॉर इवनिंग वॉक, आई माइट गो फॉर इवनिंग वॉक। इट मीन्स कि लाइक शायद ही मैं इवनिंग वॉक पे जाऊंगा। आई माइट गो फॉर इवनिंग वॉक, आई माइट गो फॉर इवनिंग वॉक। मेरे पापा लाइक शायद ही घर जल्दी आएंगे। सो माई फादर माइट कम होम, जल्दी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे गाइस? अर्ली। माई फादर माइट कम होम अर्ली, शायद ही मेरे पापा घर जल्दी आएंगे। माई फादर might come home early. When there are 50% chances of any work, we use might. Must we use to give advice when you are pretty much sure कि ये काम जरूर करना चाहिए। Okay. Now guys, if you do have any kind of doubts, you can ask please.